Hi guys and welcome back to another vlog. Today is my second day on the internship. It's one of my favorite companies, Toyota. I'm very excited and I'll take you guys with me. So let's go. अभी मैं जनरल मैनेजर के ऑफिस में हूँ. So आज का मेरा टास्क है to see all the specs of the cars. ये सारे इनके brochures और information वगैरह है. और ये रीवो है, ये क्रॉस का, यारिस का, ग्रैंडी का भी मिल नहीं रहा था ब्रोशर. ये टी शोर है about the used cars. बता भी दिया अपनी सारी वगैरह वो आपको अगर रेफर करेंगे वो आपको ना डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जो ये सारे हैं. हाँ, इसके PBO और जो भी चीज़ें सारी हैं वो उनके पास हैं डॉक्यूमेंट्स. So this is the evolution of Revo. Generation 1 1968 की, Generation 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 2016 से 2024 तक is the 8th generation. Mashallah. Very pretty, very beautiful. Oh my god. This is where you enter from. यहाँ पे कार पार्किंग एरिया है. यहाँ पे ये सारा शोरूम एरिया. वो अंदर सारे ऑफिसेज हैं, कस्टमर रिलेशन, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एवरीथिंग. बल्कि नहीं, फाइनेंस है दूसरी साइड पे. अभी यहाँ पे 4 कार्स डिस्प्लेड हैं. So that's Hilux, Cross, my favorite Grandi और Yaris. So this is Hilux Revo GR 2.8 4x4. It is the top of the line variant. ये तो वैसे 2023 की है, लेकिन when we talk about 2024 models तो उसमें 4x4 and 4x2 की cars आती हैं. So it comes in 2.5 and 2.8. It comes with a trapezoidal grille. Because it's the top of the line variant, इसमें fog lamps भी already installed हैं. It comes with DRLs, daylight running lights. Moreover, it comes with 18 inches alloy rims. So because this is GR, इस पे हर साइड पे GR Sport लिखा हुआ है. GR means Gazoo Racing. और ये इसकी over fender molding है. Comes with a tailgate handle. They're built-in side visors हैं. Look, and you don't have to install it aftermarket. Talking about the dimensions, तो सारी Hilux, Revo, GR इन सब की dimensions almost same है. This is the interior. It has black leather seats. It is 6-speed automatic. So it comes with push start and smart entry. This is the steering, which comes with all of these features for controlling the infotainment system. It has an eco and a power mode और यहाँ पे cup holders हैं and आपको charging ports भी मिल जाते हैं and it also has wireless charging. So ये इसका speedometer है. Comes with red needles which look very nice. ये इससे पहले Rocco वाले variants में नहीं आती थी 2022 के, तो ये 2023 में this was a new addition. Control ये GR variant है, तो इसके steering के ऊपर भी GR. And it comes with 6 speakers installed in the car. Or you also get scuff plates. It also comes with rear AC vents. इसका completely black interior है और इसकी seats भी leather seats हैं and they also have some red fabric lining which looks very nice. And again GR and इसके जो side doors हैं it has piano black finish. वो कार 2024 का जो base variant है वो है 63,50,000 का और जो top of the line variant है just like this one GR वो है 1,53 lakh. If Toyota wants to sponsor me or they want to give this as a gift to me then you're most welcome. तो इसके pamphlets, brochures भी मिल जाते हैं. Move Your World, Revo, Toyota, Gazoo Racing. So these are the colors which are offered. Attitude Black, Silver Grey, Graphite and Super White. So Toyota gives you a 3-year built-in warranty जिसमें आप
1 लाख किलोमीटर्स तक आप उसको चला सकते हैं। प्ले एरिया भी बनाया हुआ है, सो द किड्स कैन कम एंड प्ले हियर। व्हेन आई वाज अ किड, कोई 2-3 क्लास में, तो यहाँ पे टोयोटा ड्रीम कार कॉन्टेस्ट हुआ था। आई गॉट अ सर्टिफिकेट टू, आई पुट इट हियर। ये कस्टमर रिलेशन डेस्क है, बस जनरल मैनेजर ऑफिस। Do speak, I am back again. So ये है Toyota Corolla Cross, which is a hybrid electric car, HEV. So this was launched back in December 2023 और इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई थी January 2024 में. So it's a very new car. Corolla Cross 1.8x hybrid. So this is the top of the line variant. Looks are similar to BRV, लेकिन इसका जो competitor है वो है Haval 86. तो इसमें यहाँ पे front DRLs भी हैं, the whole line, and it also comes with fog lamps. और ये इसकी front grille है और यहाँ पे भी इसका blue accent है on the logo. और इसकी headlight में एक blue line है जिससे काफ़ी clearly पता चल जाता है कि एक hybrid car है. I'm sure most of you know, but for those who don't know hybrid क्या है, तो hybrid cars are those जो पेट्रोल पे भी चलती हैं और बैटरी पे भी चलती हैं. सो व्हेन इट्स चार्ज्ड, या इसको खुद ही पता चल जाता है कि इसमें कब स्विच करना है, या फिर यू कैन स्विच द मोड्स योरसेल्फ. तो ये है कि इट्स गुड फॉर पेट्रोल कंजम्पशन. तो पहले जो क्रॉस है ये इम्पोर्टेड होती थी. इट वाज CBU, विच मीन्स कंप्लीट बिल्ट यूनिट, एंड दिस इज CKD, विच मीन्स कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन कार. ये कम्पैक्ट SUV है और जो हेवल और सेंटा की हैं वो इससे थोड़ी सी बड़ी हैं. But considering the fact that it's a hybrid electric car and it's made in Pakistan, 50% इसके parts पाकिस्तान made हैं. 17 इंच के wheels हैं and it comes with plain plastic rims. तो इसका इंटीरियर है टेरोसा एंड ग्रे कलर. नेक्स्ट वेरिएंट है इसकी लेदर सीट्स आती हैं इन टेरोसा कलर, और जो इसका बेसिक वेरिएंट है आई थिंक उसमें फैब्रिक सीट्स हैं. But it comes with a floating infotainment system, and ये भी obviously CVT car है. It comes with 7 airbags, which is very good. It has a sunroof as well. Comes with a cup holder on the back seats as well. Also has rear AC vents और बैक लाइट्स भी हैं. फ्रंट पे भी हैं, या फ्रंट पे भी हैं और ये बैक लाइट्स भी हैं, which is nice. एक HEV कार है तो इसकी फ्यूल कंजम्पशन अच्छी होगी एंड ऑब्वियसली एनवायरमेंटल फ्रेंडली. इनवॉइस 98,49,000 और जो इसका फाइडर टैक्स है दैट्स 1,50,000 एंड नॉन फाइडर की 4,50,000. The third car which is over here is Yaris. Yaris GLI, ये बेसिक वेरिएंट है. It's not active. नहीं क्यों लग रहा है कि ये 2023 की है, लेकिन एक सेकंड देख लेते हैं. 2022 की है. Comes with plastic wheel cups. जो इसका active version होता है उसमें alloy rims आते हैं. It does not have any fog lamps. It has no DRLs. और एक और डिफरेंस इस चीज़ का भी है. एटिव एक्स होती है, चीज़ सिल्वर है, इसमें प्लास्टिक की है. इट्स नॉट क्रोम. इट्स अ मैनुअल कार. दिस इज़ द इंटीरियर. इसकी फैब्रिक सीट्स हैं, बेज इंटीरियर, बेज एंड ब्लैक. ये एंड्रॉयड पैनल नहीं है, यू कैन इंस्टॉल दैट आफ्टर मार्केट. इसके स्टीयरिंग के ऊपर भी कोई कंट्रोल्स नहीं है जो एटिव में आते हैं, इसमें नहीं है. Hi guys, I'm so bored right now. गाड़ियों के वो सारे पढ़ी थी स्पेसिफिकेशंस वगैरह, और फिर I had to go to the sales manager, लेकिन वो भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं. So like I am free. Honestly, it's the best internship. Now guys, I am a pro car expert. चल झूठा. यहाँ पे गर्मी भी वैसे बहुत है because no fans, no ACs here.
ये आजकल की रेट लिस्ट है टोयोटा आज़ाद की। डिफरेंट डीलरशिप्स के रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। सो लाइक मे बी इन जेलम और इस्लामाबाद प्राइसेस वुड बी डिफरेंट, दे माइट बी मोर, दे माइट बी लेस, यू नेवर नो। और ऑनलाइन भी डिफरेंट आती हैं। सो इट वेरीज डीलरशिप टू डीलरशिप। So there are 3 ways how customers approach to the dealership and how they buy the vehicles. Number 1 is individual, जो normal customers आते हैं, like किसी के रेफरेंस के थ्रू किसी ने बताया हो कि जी आप जाएं यहाँ पे लें गाड़ी लें, ठीक है, एक ही हो गया। सेकंड सेक्टर इज़ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है कि उसमें इंक्लूड होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो फ्रिंज बेनिफिट्स के तौर पे दे गिव द कार्स टू द एम्प्लॉइज़, तो वो इसमें आती हैं। मोर ओवर जो बैंक लीजिंग वगैरह होती है, that includes in the corporate sector. And the third one is government. I'm sorry अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो, ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली, वो गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं। जब आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो उससे 3 to 6 months ड्यूरेशन, उसके बीच में आपकी गाड़ी जब भी डिलीवर हो जाती है यू गेट इट। हो सकता है कि ड्यू टू सम रीजंस के डिलीवरी टाइम उसका 6 months से भी ज़्यादा हो जाए। तो जब गाड़ी डीलरशिप पर डिलीवर हो जाती है उसके बाद वो एकदम से ही नहीं कस्टमर को मिल जाती, उससे पहले इट गोज़ थ्रू क्वालिटी चेक्स। गाड़ी 0 मीटर है, न्यू है, लेकिन डिलीवरी के टाइम भी उसको कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई डेंट्स आ सकते हैं। वहाँ पे वो बनी है, वहाँ पे अगर वो खड़ी भी उसको कोई मसला हो गया है, अगर काफ़ी टाइम से वहाँ पे है। सो VDQI के प्रोसेस से गुजरने के बाद गाड़ी कस्टमर को मिल जाती है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच आई एम लर्निंग नाउ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज मेरा इंटरेस्ट भी इस चीज़ में है। ओके गाइस, मैं फिर से अंदर जा रही हूँ बिकॉज मुझे गर्मी लग रही है। 2 hours later. Okay, it's time for me to go. ये पार्किंग एरिया एंड ये वो ग्रैंड जो पहले अंदर से